آج سے 45 سال پہلے جنرل ضیاء الحق نے افغان مہاجرین کو پاکستان میں نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ انہیں پاکستان کا اسلامی بھائی اور محسن اقرار دیا۔ آج یعنی 2025 میں پاکستانی حکومت نے 1.7 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ٹی ٹی پی کے ممبر پاکستان میں افغان مہاجرین کی آڑ میں پناہ لیے ہوئے۔ پاکستانی حکومت کے مطابق ٹی ٹی پی بنا افغان طالبان کی سپورٹ کے اتنے منظم اٹیک لاج نہیں کر سکتی۔ فیملیز کو ٹھنڈے اور گرم موسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں ان کے لیے کسی قسم کے شیلٹر، فوڈ اور سینیٹیشن کا انتظام نہیں کیا گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کب اور کیسے آئے؟ یا 2023 سے پاکستانی حکومت ان افغان مہاجرین کو ملک بدر کیوں کرنا چاہتی ہے؟ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ان سوالات اور اس جیسے بہت سے سوال جو ایک عام پاکستان کے ذہن میں آتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ افغان پاکستان میں کب اور کیسے آئے، ان کے آنے سے پاکستان کی سوشل اور اکنامک ڈائنامکس کیسے تبدیل، اب تقریباً 45 سال بعد پاکستان کیوں ان مہاجرین کو افغانستان واپس چاہتا ہے اور اس میس ڈپورٹیشن کے امپیکٹس کیا ہوگے۔ آج سے 45 سال پہلے جنرل ضیاء الحق نے افغان مہاجرین کو پاکستان میں نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ انہیں پاکستان کا اسلامی بھائی اور محسن اقرار دیا۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہیں پاکستان میں ہر طرح کی سہولیات دی جائے گی اور انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہوگا۔ شاید اس لیے بہت سے افغان مہاجرین نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر اقرار دیا، لیکن اگر آج دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وقت نے مکمل طور پر پاسا پلٹ لیا ہے۔ آج یعنی 2025 میں پاکستانی حکومت نے 1.7 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی نوعیت کبھی خوشگوار نہ تھی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد افغانستان وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کی یونائٹڈ نیشن میں شمولیت کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کی بنیاد پاکستان اور افغانستان کا سرحدی تنازع تھا، کیونکہ افغانستان کی گورنمنٹ ڈیورل لائن کو جو کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین بارڈر ہے تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے ان دونوں ممالک کے تعلقات 1950s، 60s اور 70s میں سرد مہمی کا شکار رہے، لیکن 1979 میں سوویت یونین کی افغانستان پر چڑھائی اور قبضہ کر لینے کے نتیجے میں تقریباً 3 ملین سے زیادہ افغان مہاجر پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان نے ان مہاجرین کو صرف اسلامی بنیادوں پر اپنا بھائی نہیں کہا بلکہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجک ریزن بھی تھی۔ اس وقت افغانستان میں جہاد چل رہا تھا جسے USA، سعودی عربیہ اور پاکستان تینوں سپورٹ کر رہے تھے۔ اسی بنیاد پر نہ صرف پاکستان نے افغان مہاجرین کو خوش آمدید کہا بلکہ ان کو اپنا ایک اسٹریٹجک ایسٹ بھی اقرار دیا جو کہ افغانستان میں پرو پاکستانی گورنمنٹ کی بنیاد رکھ سکتا تھا۔ بالآخر 1988 میں سوویت یونین افغانستان سے نکل جاتا ہے اور جہاد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1990s میں افغانستان میں ایک سیول وار کا آغاز ہوتا ہے جس وجہ سے ایک دفعہ پھر افغان مہاجرین پاکستان میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف افغانستان کے صوبہ قندھار میں طالبان کا جنم ہوتا ہے جو 1996 میں افغانستان کے صوبہ کابل پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مزید افغان مہاجرین پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 9/11 اٹیک کے نتیجے میں USA نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں طالبان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، تو اس دفعہ پھر افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ لینا پڑتی ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی تب پوری ہوئی جب 5 اگست 2021 میں طالبان ایک دفعہ پھر کابل پر قابض ہو گئے اور افغانستان کے بیشتر حصے طالبان کے کنٹرول میں آ گئے۔ طالبان جو اپنے سخت حکومتی رویے اور مذہبی پالیسی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سے افغان جرنلسٹ، ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ورکر، سابقہ حکومتی آفیشل نے پاکستان میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا، اور ان میں ایسے بہت سے لوگ شامل ہیں جنہوں نے بغیر کسی لیگل ڈاکومنٹ کے خوف اور جلد بازی میں پاکستان کا رخ کیا۔ اس لیے ایک اندازے کے مطابق پاکستان اس وقت 3 سے 3.5 ملین افغانز کو ہوم لینڈ پرووائڈ کر رہا ہے جو کہ دنیا کی بڑی ریفیوجیز پاپولیشن ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں 3 قسم کے افغان مہاجرین قائم پذیر ہیں۔ نمبر 1 POR، پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈر۔ نمبر 2 ACC،
अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर। नंबर 3 UAM अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मुहाजिरीन। एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक वो लोग जिनके पास POR यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है उनकी तादाद 1.3 मिलियन है, जबकि ऐसे मुहाजिरीन जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है उनकी तादाद 8 लाख है। और सबसे ज्यादा तादाद अनडॉक्यूमेंटेड मुहाजिरीन की है जो कि 1.7 मिलियन है। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक मौजूदा डिपोटेशन ड्राइव अनडॉक्यूमेंटेड और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर मुहाजिरीन के खिलाफ की जा रही है। इस ड्राइव के मुताबिक POR होल्डर अफगान मुहाजिरीन को तंग नहीं किया जाएगा और न ही पाकिस्तान में इनके लीगल स्टेटस में कोई फर्क आएगा। यहाँ ये भी वाज़ह करना जरूरी है कि अफगान मुहाजिरीन चाहे उनका तल्लुक किसी भी कैटेगरी से हो, पाकिस्तान में 4 दहाइयों से रह रहे हैं, लेकिन इन्हें सिटीजनशिप या लॉन्ग रेजिडेंसी जैसी कोई भी चीज ऑफर नहीं की गई। यहाँ पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ भी जानना जरूरी है कि किस चीज ने उन्हें अफगान मुहाजिरीन की मैस डिपोटेशन पर मजबूर किया। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि बहुत से अनडॉक्यूमेंटेड अफगानी पाकिस्तान में टेररिज्म, क्राइम और स्मगलिंग में शामिल है और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की आमद के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात में इजाफा हुआ है और इन वाक़यात में TTP का प्राइमरी किरदार नजर आता है। इसलिए पाकिस्तान की अथॉरिटीज अफगान हुकूमत पर यह ब्लेम करती है कि वो TTP को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म का बायस बन रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक TTP के मेंबर पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की आड़ में पनाह लिए हुए दहशतगर्द सरगर्मियां अमल में ला रहे हैं। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि तालिबान की हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान में खास तौर पर KPK और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में 600 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जिसमें मरकजी किरदार TTP यानी पाकिस्तानी तरीके तालिबान का है। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक TTP बिना अफगान तालिबान की सपोर्ट के इतने मुनज़्ज़म अटैक लांच नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत ने बशतर मौकों पर TTP का मुद्दा अफगान तालिबान जो कि हुकूमत में है उनके सामने पेश किया है, लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से कोई खातिरख्वाह रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 को तमाम अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मुहाजिरीन को 1 नवंबर 2023 तक पाकिस्तान से निकलने का कहा। इस पर कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का कहना है कि पाकिस्तान का अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदल करना असल में अफगान तालिबान पर प्रेशर बिल्ड करने की मूव है, लेकिन पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर इस चीज की मुखालफत की है और कहा है कि वो अफगान मुहाजिरीन को एज अ प्रॉक्सी यूज नहीं कर रहे। दहशतगर्दी के अलावा और बहुत से सोशल और इकोनॉमिक मसाइल हैं जिनकी बना पर पाकिस्तान ने अनडॉक्यूमेंटेड मुहाजिरीन को मुल्क बदल करने का फैसला किया। पाकिस्तान जो पहले ही बहुत से सोशल और इकोनॉमिक मसाइल जैसा कि महंगाई, बेरोजगारी, तलीम और सेहत के फुकदान से दो चार है, उस पर जुल्म ये है कि 3.5 मिलियन से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाना पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त अफगान मुहाजिरीन की वजह से बहुत से सिटीज जैसा कि कराची, कोयटा और पेशावर में एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर और हाउसिंग पर बहुत प्रेशर और चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। इसी तरह बहुत से मुकामी पाकिस्तानी इन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मुहाजिरीन को एज अ जॉब कंपेटिटिव देखते हैं। बहुत से एनालिस्ट का कहना है कि 9 मई 2023 के बाद मुल्क में मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसका असर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर हुआ है। मौजूदा हुकूमत के अफगान मुहाजिरीन को लेकर स्ट्रिक्ट पॉलिसी के पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी नजर आता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर पब्लिक सेंटिमेंट भी अफगान रेफ्यूजीज के खिलाफ देखने को मिलता है और बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन अफगान मुहाजिरीन को क्राइम्स, ड्रग्स और स्मगलिंग के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर हम टाइमलाइन के क्रैकडाउन की बात करें तो 3 अक्टूबर 2023 को इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अफगान मुहाजिरीन को 1 नवंबर 2023 की डेडलाइन दी थी, जिसके मुताबिक तमाम अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज को नवंबर तक मुल्क छोड़ने का कहा गया और नवंबर 2023 के बाद मैस डिपोटेशन शुरू हो गई और बहुत से अफगान मुहाजिरीन की दुकानों और घरों पर कब्जा कर लिया गया या उन्हें सील या डिमोलिश कर दिया गया। उन डिपोटेशन इस वक्त तुरहम और चमन बॉर्डर के जरिए हो रही है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2025 के दरमियान 7 से 7.5 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान को खैरबाद कह चुके हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मुहाजिरीन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को हरासमेंट, अरेस्ट और डिटेंशन का सामना है, जिस वजह से वो अपने घर और दुकानें कम दामों पर बेचने पर मजबूर थे और उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदल करने के लिए तुरहम और चमन बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस वक्त
ओवर क्राउडेड है। फैमिलीज को ठंडे और गर्म मौसम का सामना करना पड़ रहा है, जहां उनके लिए किसी किस्म के शेल्टर, फूड और सैनिटेशन का इंतजाम नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सख्त मौसम बच्चों की सेहत पर भी असरअंदाज हो रहा है और प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा डिले आ रहा है, जिसकी वजह लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। अफगान मुहाजिरीन जिनको मुल्क बदर किया जा रहा है, इनमें 70% तादाद बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल है, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं। मजीद ये कि अफगान मुहाजिरीन की वो खवातीन जिन्होंने पाकिस्तान में आंख खोली और परवरिश पाई, वो अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत के ज़ेरे साया हो गए, जहाँ उन पर मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी जो कि उनकी जिंदगी का तरीक पहलू बन सकता है। बहुत से अफगान मुहाजिर जिनको मुल्क बदर किया जा रहा है, उनकी बहुत सी तादाद पाकिस्तान में पली बड़ी है और जुल्म ये है कि उनके पास ना ही पाकिस्तान की सिटीजनशिप है और ना ही अफगान हुकूमत इन्हें रिकॉग्नाइज कर रही है। इसलिए उन मुहाजिरीन के लिए स्टेटलेसनेस की सूरत हाल क्रिएट हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इन्हें एक्सेप्ट करने के कायल नहीं है। इसलिए ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले ही पाकिस्तान की अफगान रेफ्यूजीज के साथ ट्रीटमेंट और उनको मुल्क बदर करने पर कंडेम कर चुके हैं और इस डिप्यूटेशन को रेफ्यूजीज लॉ के खिलाफ कह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के मुताबिक सिर्फ वो अफगान मुहाजिरीन जो अनडॉक्यूमेंटेड है या जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड है, उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है, जबकि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले मुहाजिरीन मुल्क में रह सकते हैं। अगर हम काबुल की तरफ देखें तो हमें मालूम होता है कि काबुल में बैठी तालिबान गवर्नमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के ये इक़दामात गैर पॉलिटिकल और गैर इंसानी है। मज़ीद ये कि अफगान तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए अफगान मुहाजिरीन को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए तालिबान के बहुत से लीडर्स, खास तौर पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान के इस एक्शन के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन तल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। तालिबान के हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन के लिए अफगानिस्तान में टेम्पोरेरी कैंप सेटअप कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत सी रिपोर्ट्स ये जाहिर करती है कि इनकी कैपेसिटी ना होने के बराबर है, जिसमें खुराक और सेहत के इंतजाम बहुत लिमिटेड है। बहुत से अफगान मुहाजिरीन जिनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ धकेला जा रहा है, उनको एक अनसर्टेन फ्यूचर, पॉवर्टी और हाउसिंग शॉर्टेज का सामना रहेगा। यहाँ ये जानना भी काबिल जिक्र है कि इनमें बहुत से ऐसे अफगान मुहाजिरीन शामिल हैं जो अफगान तालिबान को पसंद नहीं करते हैं, चाहे इस नापसंदगी की बुनियाद आइडियोलॉजिकल हो, हुकूमती तर्ज अमल हो या तालिबान की रिलीजियस पॉलिसीज हो। इसलिए ऐसे अफगान रेफ्यूजीज को अफगानिस्तान में अपनी जिंदगी को लेकर बहुत से खतरा लाहक है। इसके अलावा ऐसे अफगान मुहाजिरीन जिनमें लड़कियां और खवातीन शामिल हैं, उनको अफगानिस्तान धकेलने से उनकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर होगा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वापसी के साथ ही औरतों के सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल फ्रीडम पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर दी गई है। इसलिए अफगानिस्तान में औरतों के हकूक को लेकर उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आती। जैसा कि इस वीडियो के आगाज में देखा जा चुका है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तल्लुकात कभी खुशगवार न थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का मौकिफ था कि अफगानिस्तान में तालिबान की प्रो पाकिस्तानी हुकूमत आने के बाद इन दोनों में तल्लुकात खुशगवार हो गए। इसके बरअक्स 2021 में तालिबान की हुकूमत में वापसी के बाद तल्लुकात की नाखुशगवारी में मजीद इजाफा हुआ है। इसके पीछे न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ रुझान है, बल्कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी शामिल है और अब एक नया फैक्टर अफगान मुहाजिरीन का भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क नहीं है जिसने अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने का कदम उठाया, बल्कि ईरान ने भी हजारों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर किया है। इसलिए ईरान पाकिस्तान की इस लॉजिक में उसे सपोर्ट करता है। अगर रशिया और चाइना की बात की जाए तो वो खामोशी से इस मंजर को देख रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया भी पाकिस्तान की इस मैच डिप्यूटेशन के मामले में बिल्कुल खामोश नजर आता है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जैसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को इस मैच डिप्यूटेशन को रोकने की सलाह दी। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का कहना है कि अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने के पीछे बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसा कि टेररिज्म, स्मगलिंग और क्राइम। अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से मुल्क बदर करने से ये मसाइल हल हो सकते हैं। जबकि बहुत से एनालिस्ट का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव को प्रमोट कर रही है, जो कि इस वक्त अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ है। ये पॉपुलिस्ट नैरेटिव के पीछे गवर्नमेंट की अपनी खामियां छुप जाएगी, जैसा कि इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन और टेररिज्म जैसे मसले मसाइल। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि इस मैच डिप्यूटेशन के पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी जैसा कि ISI और MI का कलीदी किरदार है। जो लोग इस मैच डिप्यूटेशन के हक में हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त
3 से 3.5 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज का बर्डन नहीं उठा सकता। इससे पाकिस्तान के रिसोर्सेज और जॉब्स में कमी हो रही है, इसलिए अफगान महाजिरीन मुल्क बदल कर देना ही बेहतर है। जबकि वो लोग जो मैच डिपोटेशन की मुखालफत करते हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की ये मूव इनह्यूमन और अन इस्लामिक है। इनका कहना है कि वो अफगान महाजिरीन जो तकरीबन 4 दहाइयों से इस मुल्क में रहाइश पजीर है, उन्हें पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे देनी चाहिए ताकि वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान सोसाइटी का हिस्सा बन जाए। जो बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है, जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है, उसको सिटीजनशिप मिलना चाहिए। इन दोनों ने इस पॉलिसी की हमायत का ऐलान किया है, जबकि पीटीआई की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जबकि JUIF और कुछ सब नेशनल पार्टीज जैसा कि ANP ने इन इक़दाम की खुली मुखालफत की है। इसी तरह कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन और कुछ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी हुकूमत के इस मूव की मुखालफत की है। इसलिए अगर हम इन चैनल्स के प्रोग्राम और उनमें दी जाने वाली राय का तजज़िया करें तो मालूम होता है कि वहाँ प्रो गवर्नमेंट नैरेटिव पेश किया जा रहा है, जिसके मुताबिक अफगान महाजिरीन पाकिस्तान में होने वाले जुर्म में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त तक 7 लाख से ज्यादा अफगान महाजिरीन को अफगानिस्तान की तरफ रवाना कर दिया गया, लेकिन अफगान तालिबान के पास ऐसी कोई फंडिंग या इकोनॉमिक सपोर्ट मौजूद नहीं है कि वो इस बड़ी तादाद को अफगानिस्तान में एक बेहतर जिंदगी फराहम कर सके। इसी तरह बहुत से अफगान महाजिरीन को अफगानिस्तान में परसुएशन का डर लाहक है, जिसमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और साबका हुकूमत का स्टाफ शामिल है। इसी तरह उन बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस है जो इस वक्त स्टेटलेसनेस और अनडॉक्यूमेंटेड है। यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच पहले ही इस मैच डिपोटेशन की मुखालफत कर चुके हैं। उनके मुताबिक ये डिपोटेशन न सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इसमें ड्यू प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया जा रहा, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इसे फोर्स डिपोटेशन कहती है। इसी तरह कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूरोपीय यूनियन और कनाडा वगैरह शामिल है, उन्होंने पाकिस्तान को ये मैच डिपोटेशन रोकने के लिए कहा और एक लीगल रास्ता क्रिएट करने का बोला है। जबकि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने अफगान रेफ्यूजीज की यूरोप में सेटलमेंट की बात की है। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हुकूमत को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश है। अव्वल तो इनके पास इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ही मौजूद नहीं है, दुनिया में किसी भी मुल्क ने इन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नहीं किया है। दूसरा, इनके मुल्क में सियासी और माशी बुरहान है। इसके अलावा दहशतगर्दी के वाकयात भी देखने को मिलते हैं। इन सब के बावजूद उन पर 1.7 बिलियन अफगान रेफ्यूजीज का बोझ डालना सरासर जुल्म होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के इस मैस मूव की वजह से अफगान महाजिरीन एंटी पाकिस्तान ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अलावा बॉर्डर वायलेंस भी बढ़ सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान की इस मैस डिपोटेशन की वजह से KPK और बलूचिस्तान में रहने वाली पश्तून कम्युनिटी में ग्रुपिंग और एंटी पाकिस्तान फीलिंग जन्म ले सकती है। इसी तरह पाकिस्तान को ग्लोबल डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान की इस मूव पर कोई पॉजिटिव बयान नहीं दिया। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान को फोर्स डिपोटेशन रोकने की जरूरत है और अफगान महाजिरीन को वॉलंटरी डिपोर्ट करने की तरफ रागिब करना है, ताकि उनकी डिग्निटी महफूज रहे, ताकि ये महाजिरीन पाकिस्तान से जाए लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ कोई नेगेटिव नैरेटिव मौजूद ना हो। इस तरह पाकिस्तान को KPK और बलूचिस्तान में रेफ्यूजीज लीगल सपोर्ट डेस्क कायम करने की जरूरत है, जिसके थ्रू अफगान सिटीजन लीगल रेजिडेंसी, अजाइलम और रेफ्यूजीज स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड भी वहां रिन्यू हो सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए पाकिस्तान UNHCR और IOM जैसी ऑर्गेनाइजेशन का सहारा ले सकता है। इस अमल को करने के बाद पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन की आर्बिट्रेशन, अरेस्ट, डिटेंशन और हरासमेंट जैसे वाकयात को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान को तुरहम और चमन बॉर्डर के करीब ह्यूमैनिटेरियन बफर जोन कायम करने की जरूरत है, जहां टेम्परेरी खाना, पानी और मेडिकल सहूलियत दी जाएगी, जिससे अफगान महाजिरीन के वापसी के सफर को आरामदा बनाया जा सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान 3 से 3.5 मिलियन अफगान महाजिरीन का बर्डन अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए पाकिस्तान को एक रीजनल समिट बुलाने की जरूरत है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चाइना और सेंट्रल एशिया कंट्रीज शामिल हो सकती है। इस समिट के थ्रू अफगानिस्तान को प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो मुल्क के अंदरूनी मामलात को बेहतर करने की कोशिश करे। इसके अलावा OIC और UNO से जॉइंट फंडिंग हो सकती है, जिससे अफगान रेफ्यूजीज की मैनेजमेंट की जाए। मज़ीद ये कि रीजनल पाथवेज भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे अफगान रेफ्यूजीज के वापसी का सफर स्मूथ बनाया जा
जा सकता। इसी तरह बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें कनाडा और जर्मनी शामिल है, उनके मुताबिक ऐसे अफगान महाजिरीन जिनको अफगानिस्तान में खतरा है, इनकी सेटलमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में की जा सकती है। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे अफगान महाजिरीन की निशानदही करे, तो उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल करने के लिए हुकूमतों से बात करे। इसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को चाहिए कि वो जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म कायम करे, जिसके जरिए अनडॉक्यूमेंटेड अफगान महाजिरीन की नकलो हमल पर नजर रखी जा सके। इसी तरह पाकिस्तान को चाहिए कि वो नादरा और इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन करे ताकि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान महाजिरीन का मसला हल हो सके। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एनजीओज को चाहिए कि वो मिलकर काम करे और पब्लिक को इस बात से आगाह करे कि तमाम अफगान महाजिरीन पाकिस्तान के लिए खतरे का बायस नहीं है। बहुत से महाजिरीन पाकिस्तान की इकोनॉमी में पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत सी तादाद टेररिज्म, क्राइम और स्मगलिंग के वाकयात में शामिल नहीं है। इसी पब्लिक कैंपेन के थ्रू पाकिस्तान में बढ़ते हुए एंटी अफगान नैरेटिव को कम किया जा सकता है। वो तमाम पहलू जिस पर इस वीडियो में रोशनी डाली गई है साबित करती है कि इस वक्त पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन की मैस डिपोर्टेशन का मसला एक बड़ा पॉलिटिकल मसला बन चुका है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी और सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात को मजीद खराब कर रहा है। आपके ख्याल में अफगान महाजिरीन का मसला किस तरह हल किया जा सकता है? क्या इस मसले पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है? क्या तमाम अफगानी पाकिस्तान में जुर्म में मुलव्विस है? या इंटरनेशनल कम्युनिटी का लफ्जों की बजाय फंडिंग देना भी जरूरी है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।